विच पार्टीशन शुड बी सुटेबल फॉर दिस. डू यू सी, अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ किया तो ग्राफ कैसा आएगा? करेक्ट स्ट्रेट लाइन. And try to observe something. Say I'm taking this is my A, and say this will be my B, something like this. Okay, and this will be something, say x naught, and यहाँ पे x1 रहेगा, x2 रहेगा, like this. Do you see that, everyone? Alright. Now one more thing to observe. Hmm. Do you see, if I take any interval, any, say xi to xi plus 1, if I take any interval in general, so do you know always the minimum value is going to be at xi? The minimum value is going to be at xi. Do you see that? And maximum value will be going to xi plus 1. Do you see that, everyone? Because in this interval the minimum value is this, that is at xi, and maximum value is at xi plus 1. Take any interval. If I take this interval also, so minimum value is at the first point and maximum value is the at the second point. Is it okay? Can you see that, everyone? Why am I saying this? Because in this case what will be my mi? Mi is what is my mi and capital Mi? Yes, small mi क्या होता है? Correct. GLB of function which interval? Correct. X lying between xi to xi plus 1. Okay. Can somebody tell me what will be this? This will be function value at xi. Do you see that? That is actually f of xi. Everyone, can you see that? From graph I am doing this. Same can I do it here also? What is this? LUB of the function, and can you see that that will be f of xi plus 1. Is it clear, everyone? Okay, so we are having my small mi and capital Mi. We need to find a partition. So let us take usual partition which I took in the starting में मैंने एक standard partition बताया था क्या लेने को, याद है तुमको? Let me just tell you once again. Say this is my A, this is my B. If I want to part it into n part, then each part will have length b minus a upon n. Do you see that, everyone? If I am making it n part, so length of each part, correct, it will be b minus a upon n. So now I will define my x naught equal to a, x1 will be a plus b minus a upon n, x2 will be a plus 2 times b minus a upon n. Do you see that? And what will be my xn? A plus n into b minus a upon n, that is b. Correct? So I will consider this set p equal to x naught x1 up to xn be a partition of AB. Do you see that, everyone? Is it okay till now? So I have the partition. So I have the partition. Now what I want to prove? What next? Yes, by using Riemann criteria, we need to prove UPF minus LPF, that is less than epsilon. Okay, let us roughly see what do we want to do. Okay, we are not going to in the proof now. Just let me see what do we require. जैसे हम लोग करते हैं ना, सीक्वेंस के कन्वर्जेंस में हम लोग स्टार्ट करते हैं कंसीडर वाला पार्ट, देन लेटर ऑन हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं कि मतलब ज़रूरत क्या क्या थी और क्या क्या करना था, लाइक दैट.
करेक्ट समझ रहे तुम लोग को? ओके, सो लेट अस सी, अगर सपोज सपोज मैंने यूपीएफ माइनस एलपीएफ लिया, सो क्या आएगा? व्हाट इज माय यूपीएफ समेशन कैपिटल एम आई इंटू एक्स आई प्लस वन माइनस एक्स आई, and what is my LPF minus summation small mi into xi plus 1 minus xi. Do you see that? So ये term क्या आएगा? Now we know something about these two terms. Do you see that? xi plus 1 minus xi plus 1 minus xi, ये length है actually. From the previous one, do you see? अगर दो बंदों का subtraction है तो this gives me the length, that is my b minus a upon n, which I already know. So at the place of xi plus 1, I can I write it, this is capital Mi minus small mi, and this is b minus a upon n. Okay, but what is my capital and small mi? Capital Mi, or let me break the summation equal to 1 to n. So this will become, what will be this? M1 minus, sorry, M0 minus M0. Next, M1 minus M1. In between there is plus sign. Do you see that, everyone? And last one will be mn minus n. Do you see that, everyone? I think ये n minus वन तक ही रहता है ना? Yes, because ये देखो यहाँ पे n minus वन रहेगा तभी यहाँ पे आएगा, because this will consist xn. अगर एम आई ले लिया तो एक्स आई प्लस वन, मतलब n प्लस वन भी डालना पड़ेगा. ओके, नाउ व्हाट इज एम जीरो? M0 means which interval I am talking about? 0 to 1, x0 to x1. Do you see that ये टेलीस्कोपिक सीरीज जैसा आएगा, ये आएगा x1 minus x0 and plus this will be x2 minus x1. This will be something xn minus xn minus 1. Just observe. और ये b minus a upon n is outside. That is what b minus a upon n, that is outside. Okay, can you see that, everyone? Do you see क्या किया मैंने? फिर से देखो, पार्टीशन था, ईच पार्टीशन का लेंथ था b माइनस ए अपॉन एन. सो एट द प्लेस ऑफ एक्स आई प्लस वन माइनस एक्स आई, हियर ऑल्सो आई कैन राइट b माइनस ए अपॉन एन. करेक्ट? So now we see what is my capital Mi and small mi. By previous thing we saw something. What is my capital Mi? Capital Mi is f of xi plus 1, but what is my function? Function is constant, constant function, identity function. So that is f of x equal to x. So f of xi plus 1 will be xi plus 1. That is capital Mi is giving me xi plus 1 and small mi is giving me xi. Do you see that? Capital small mi is giving me xi and capital Mi is giving me xi plus 1. That is what we have to substitute there. So if I substitute in the last, what we will be having, सी इधर से सब कैंसिल होंगे, बचेगा कौन? x1 x2 x3. हाँ, xn and x नॉट बचेगा. डू यू सी दैट? सो दैट इज समथिंग लाइक b माइनस ए अपॉन n पहले से ही है, इनटू उधर से क्या बचेगा? xn माइनस x नॉट. व्हाट इज xn? दैट इज अगेन b माइनस ए अपॉन n, समथिंग लाइक दिस. डू यू सी दैट? ये मेरा अभी. नाउ व्हाट? और अपने को क्या चाहिए था? ये लेस देन एप्सिलॉन. डू यू सी ऐसा हम लोगों ने कभी कुछ किया है? यस एनीवन?
सीक्वेंस में वेरी नाइस, क्या किया है ऐसा कुछ आया तो क्या करते हैं? करेक्ट। मतलब दिस इज लेस देन एप्सिलॉन वो कैसे बोलते हैं, ये इनइक्वालिटी कैसे आता है हमारे पास? हाउ डू वी गेट दिस इनइक्वालिटी? एनीवन? But who tells you that this inequality will hold? What is that? What is that word? Yes, very nice. Archimedean property. Very good. Do you see that? What is Archimedean property? What we are going to use is this. No, give me any number. Say epsilon is a positive number, so there will exist a natural number n belong to natural number such that 1 upon n is less than epsilon. That is what we are going to use. In actual, the definition of epsilon property is natural number is not bounded above. This is the actual definition of Archimedean property. Later on, we make that definition into this. This was also, I think, done in your sem 1 paper 1, sem 1 of SYB, of FYBSC. तुम लोग को अभी आई थिंक सेम वन स्टार्ट होएगा ऑनलाइन लेक्चर, तो मे बी यू कैन वॉच दैट वीडियोज ऑफ दैट FYBSC. इस बार तो पूरा पेपर ही मैं पढ़ा रहा हूँ. आई विल स्टार्ट फ्रॉम यूनिट 1 बेसिक्स. सो फॉर द क्लियरेंस ऑफ बेसिक तुम लोग का थोड़ा बेसिक स्ट्रांग हो जाएगा. So you can watch that if you want. Okay, is it clear? So can you see that we have started with for epsilon positive. So can I say 1 upon n is less than epsilon? And here also, uh, at the place of epsilon, what will I have? I want this relation. Do you see that? तो मैं क्या लिखूँ epsilon की जगह पे? Epsilon upon b minus a up the whole square. Do you see that? Hello. दिस इज़ टू राइट योर टेक्स्ट बुक प्रूफ. जैसा अगर तुमको बनाना है तो सी हम लोग ने ये ऑब्जर्व किया कि मेरे को ऐसा चाहिए. अभी तक मैंने प्रूफ स्टार्ट नहीं किया है. सो ये जो पार्ट है ना ये पहले ही आएगा. सी मैं बोलता हूँ ना, पहले हम लोग क्या करते थे सीक्वेंस में, हम लोग डायरेक्ट कंसीडर स्टार्ट करते थे एंड बीच में इन बिटवीन हम लोग साइड में रखते थे कि वहाँ पे क्या लिखना है. वहाँ पे ये आर्किमिडियन प्रॉपर्टी लिखना था. डू यू सी दैट? अगर तुम लोग को याद हो कुछ जैसा हम लोग ने किया था. ओके, सो शैल वी स्टार्ट नाउ? Do you see our requirement? Our requirement to use this. So we will start now. Mm, So we'll consider for for given epsilon positive. Then what? Just tell me for given epsilon positive. What should I do? See, if epsilon is positive, so can I say epsilon upon b minus a the whole square? That is also positive. Okay. So can I say there exists a natural number such that there exists a natural number there exists a natural number such that epsilon upon b minus a the whole square, sorry, 1 upon n, 1 upon n is less than equal to epsilon upon b minus a the whole square. Do you see that? Can we see that? सी ये सब क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये एन नहीं पता था. मतलब जो पार्टीशन है ना वो कितने पार्ट में करना है वो नहीं पता था. वो तो मैंने इन जनरल एन के फॉर्म में ले लिया. अभी मेरे को पता है ये एन कितना नंबर है. एप्सिलॉन इक्वल टू अगर मैंने 10 लिया, सो दिस एन विल बी समथिंग 50 और समथिंग सपोज.
तो ये 50 है, मतलब मेरे पार्टीशन में कितने नोट्स आएंगे, 50 नोट्स आएंगे। नाउ वी नो, मतलब दिस विल डिपेंड ऑन योर एप्सिलॉन, जो भी एप्सिलॉन दो उसके हिसाब से मैं एन दूंगा, उसके हिसाब से मेरे पार्टीशन में उतने लोग रहेंगे। ऐसा इज दिस ओके? दिस इज आवर फर्स्ट पार्ट, स्टेप 1। डू यू सी, ये हम लोगों ने क्यों किया? ये अपने को उधर से पता चला कि ऐसा कुछ आने वाला है लेटर ऑन। एंड कैन आई से लाइक दिस, b minus a the whole square upon n that is less than epsilon, correct? From this to this, okay? So I will stop now for step 1. What is my step 2? Yes, we divide interval a to b into n parts, correct? What is that n part? जो ऊपर n मिला है ना, that is my n part. This is the same n, correct? एंड उसको मैंने नोटेशन क्या दिया, याद है? You can write it, or you can directly write p equal to x naught, x1, x2 up to xn. Okay, what is my xi? It is x a plus something, no? What is my xi? A plus I into b minus a upon n. Is it okay, everyone? This is my partition. Okay, so now we have both the thing. We have a partition now. For Riemann criteria of integrability, we wanted a partition for any epsilon. Give me any epsilon. I have. Do you see that? ये जो भी अभी तक किया, अभी तक समझ रहे हैं क्या किया मैंने? For given epsilon positive, I have epsilon upon b minus c the whole square is greater than 0. Then by Archimedean property. Archimedean property. What does that say? If there is a number which is greater than 0, then there exists a natural number such that 1 upon n that is less than epsilon upon that is to be number ho. Is it okay? So next part is that I need to get a partition, and कितने part में? वही n part में. Do you see? अभी next part समझ रहे क्या करेंगे? अभी मैं, मेरे को partition मिल गया, अभी क्या कर रहे हैं? Consider UPF minus LPF. अभी डायरेक्ट दिख रहा है प्रूफ? कैन यू सी एवरीवन? व्हाट इज माय UPF एंड LPF? सो ये समेशन अगर i इक्वल टू 0 टू n माइनस 1 तक लिया मैंने, so this will be capital Mi minus small mi into xi plus 1 minus xi. Do you see that? Now we already know that is summation I equal to 0 to n minus 1. What is capital Mi minus small mi? करेक्ट। ये समेशन पहले इसका वैल्यू लिख लेते हैं। व्हाट इज दिस? दिस इज लेंथ जो हम लोगों ने पहले लिया है। व्हाट इज दिस? एम आई माइनस स्मॉल एम आई, कीप इट एज इट इज़। दिस इज बी माइनस ए अपॉन एन, क्योंकि ये मैंने लेंथ फिक्स कर लिया है ना उनका सब इंटरवल। नाउ ये समेशन अगर इस पे डाला मैंने तो क्या आएगा? ये टेक बी माइनस ए अपॉन एन आउटसाइड, दिस विल बी सबका एडिशन, दैट विल गिव मी फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म एक्स एन माइनस एक्स जीरो। यू सी दैट? ये एक्स एन माइनस एक्स जीरो अलग से आया और ये दिस थिंग अलग, ये अलग है। समझ रहे हैं तुम लोग को? दिस इज लेंथ ऑफ सब इंटरवल, करेक्ट? एंड दिस थिंग आर समथिंग एल्स। ये चाहिए तो मैं एक्सपांड करके लिखूँ क्या? आई एम जस्ट ब्रेकिंग दिस समेशन। डू यू सी दैट? हाँ, तो ये क्या आएगा नाउ? बी माइनस ए अपॉन एन, एंड दैट इज ऑल्सो दिस टर्म इज बी, दिस टर्म इज ए, so this is again b minus a. Okay, so what we have? B minus a the whole square upon n,
and we already know now that is b minus, do you see that? That is less than epsilon. So that is less than epsilon. So we proved UPF minus LPF is less than epsilon, implies f is integrable. Do you see? Yes everyone. पहले मैंने क्या किया, पहले मैंने ग्राफिकली देखा कि स्मॉल एम आई एंड कैपिटल एम आई क्या रहेगा. अभी जस्ट एक तुमको हिंट देता हूँ. अगर मेरा फंक्शन एक्स स्क्वायर होता, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सो तभी भी यही सब होता क्या? मीन्स मेरा ग्राफ कैसा होता? डू यू सी दैट? ग्राफ कुछ ऐसा होता और ए टू बी, समथिंग लाइक दिस. तभी भी जो मेरा स्मॉल एम आई रहेगा वो एट द एक्स आई पे ही आएगा क्या? ऐसा ही कुछ रहेगा क्या? यस. एंड कैपिटल एम आई वो एक्स आई प्लस वन पे ही रहेगा क्या? यस एवरीवन, कैन यू सी दैट एवरीवन? So what do you think? What am I using here? What is the important thing about them? What are these functions? Increasing, very nice, very nice. लेक्चर में तो मैं क्लैप कराता तेरे लिए. The function is increasing function, correct. So what do you mean by increasing function? X I पे जो भी वैल्यू रहा that will be less than xi plus 1 पे जो भी वैल्यू रहा. Same here also, because my function is increasing तो ग्राफ ऐसा ही कुछ आएगा. Do you see that? सपोज ये तुम्हारा एक्स आई है एंड दिस इज एक्स आई प्लस वन, करेक्ट. सो कैन यू प्रूव द सेम थिंग? अगर मैं एक्स स्क्वायर के लिए लिया तो सेम ऐसा बोल सकते हो क्या? सेम प्रूफ. ये पार्टीशन विल बी एज इट इज़. यहाँ पे कैपिटल एम आई की जगह पे कौन आएगा एंड स्मॉल एम आई की जगह पे कौन आएगा? बोलो. सेम, बट इधर स्क्वायर के वाले टर्म आएंगे. परफेक्ट. और कट तो होना है, कट तो होना ही है इसको. मतलब लास्ट में बचेगा कौन? एक्स एन स्क्वायर माइनस एक्स नॉट स्क्वायर. डू यू सी दैट? मतलब यहाँ पे क्या आएगा? एक्स एन स्क्वायर माइनस एक्स नॉट स्क्वायर, ये ऐसे ही रहेगा. एंड व्हाट इज दैट? एक्स एन स्क्वायर माइनस एक्स नॉट स्क्वायर, दैट इज अगेन बी माइनस ए. तो मतलब फाइनल जो भी आया ये टर्म तो एक कांस्टेंट ही रहेगा अपॉन एन. सो कैन यू अगेन डू बाय दैट दिस थिंग, आर्किमिडियन प्रॉपर्टी? डू यू सी दैट एवरीवन? सो आर्किमिडियन प्रॉपर्टी वाला पार्ट जो है वो अपने को स्टेप वन के लिए थोड़ा जगह छोड़ना है, सो दैट ये अपने को समझना चाहिए लेटर ऑन. क्योंकि नाउ वी आर राइटिंग टेक्स्ट बुक प्रूफ. टेक्स्ट बुक प्रूफ मीन व्हाट? जो भी मैं करते जा रहा हूँ उसका यूज़ होना चाहिए विदाउट नोइंग. जैसे हम लोग टेक्स्ट बुक प्रूफ पढ़ते तो अपने को पहले दिखता नहीं है कि ये सब क्यों कर रहा हूँ मैं. लेटर ऑन समझता है कि वो मैंने बी माइनस सी द होल स्क्वायर अपॉन एन ही क्यों लिया था. लेटर ऑन समझा था. तो पहले मैंने बताया कि वो आया कैसे, क्यों चाहिए मेरे को टेक्स्ट बुक प्रूफ में. नाउ वी आर गोइंग टू राइट इट दैट. इज इट ओके एवरीवन? इज इट क्लियर? Okay, now my question is that can you prove in general if your function is, say I am saying monotonic, then can you prove that function is integrable? अभी तक मैंने इंक्रीजिंग फंक्शन की बात की है, डिक्रीजिंग में क्या होएगा? सेम डिक्रीजिंग के लिए भी कर सकते हो क्या तुम लोग? Okay, do you want me to repeat the whole proof once again? Yes. Yes everyone, just मैं फटाक से एक बार रिकॉल कराता हूँ. सी अभी तुम लोग ही बोलना. सो नाउ माई फंक्शन इज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स. सो ग्राफिकली आई सी समथिंग इन एनी इंटरवल एक्स आई टू एक्स आई प्लस वन. आई सी जो मेरा मिनिमम वैल्यू आएगा वो एक्स आई पे आएगा एंड मैक्सिमम वैल्यू एक्स आई प्लस वन पे आएगा. डू यू सी दैट? सिंस माई फंक्शन इज इंक्रीजिंग हियर, so that is what I am saying. Small m I is my f of x I plus 1, f of x I, and the function is f of x equal to x. अभी x कंसिडर करो, so that will be x I and here that will be x I plus 1. इतना क्लियर है?
नेक्स्ट व्हाट, हम लोग ने एक पार्टीशन लिया जो स्टैंडर्ड मोस्टली लेते हैं, क्योंकि अभी के केस में देखो रीमान क्राइटेरिया का यही एक इम्पोर्टेंस है, मुझे जस्ट एक पार्टीशन चाहिए, आई डोंट वांट इन जनरल, मुझे जस्ट एक पार्टीशन मिल गया, काम हो गया अपना, वी डोंट वांट एनीथिंग एल्स। इज इट ओके? नेक्स्ट व्हाट, नेक्स्ट आई एम कंसिडरिंग यूपीएफ माइनस एलपीएफ, और इसको सॉल्व किया मैंने। सो एक्स आई प्लस वन माइनस एक्स आई जो कि लेंथ है वो मेरे को पता है बी माइनस ए अपॉन एन है, एंड दैट इज़ अभी कैपिटल एम आई स्मॉल एम आई में समेशन को ब्रेक किया, सो व्हाट आई एम गेटिंग दैट इज समथिंग लाइक टेलीस्कोपिक सीरीज, जिसमें सब कैंसिल हो रहे हैं, फर्स्ट और लास्ट टर्म बच रहा है, सो दैट इज़ व्हाट आई एम रिमेनिंग विथ बी माइनस ए अपॉन एन, एंड दैट इज़ एक्स एन स्क्वायर माइनस एक्स नॉट स्क्वायर, एंड दैट इज जो न्यूमरेटर का टर्म है वो कोई भी कांस्टेंट नंबर है, डिनोमिनेटर इज एन, बाय यूजिंग आर्किमिडियन प्रॉपर्टी वी कैन से, समझ रहे हैं हम लोग ने कुछ भी अलग किया क्या, उधर भी एफ वाई में भी हम लोग आर्किमिडियन प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे थे, इधर भी वही कर रहे हैं, द थिंग इज दैट थोड़ा सा टेक्निक चेंज है। यस, उधर भी एप्सिलॉन था, इधर भी एप्सिलॉन है, डू यू सी? नाउ अपने को दिखा ये आर्किमिडियन प्रॉपर्टी, सो लेट अस स्टार्ट टेक्स्ट बुक प्रूफ, द फर्स्ट स्टेप विल बी योर फॉर गिवन एप्सिलॉन पॉजिटिव, so I can say epsilon upon b minus a the whole square, that is also positive, why? Because b minus a that is positive, and उसका स्क्वायर लिया वो भी पॉजिटिव, डिवाइड लिया वो भी पॉजिटिव, देन बाय आर्किमिडियन प्रॉपर्टी वी कैन से देयर एग्जिस्ट n बिलोंग टू नेचुरल नंबर सच दैट 1 upon n that is less than epsilon upon b minus a the whole square, so I will say what, b minus a the whole square upon n that is less than epsilon. Is it okay everyone? Is the step one clear? Can you write it by yourself like this? समझ रहे हैं, ये अपने को दिमाग में चलना चाहिए कि आगे क्या आने वाला है, सो दैट्स व्हाट, यही मैथमेटिक्स है एक्चुअली, एक बार स्ट्रक्चर समझ गया ना तो यू नीड टू राइट इट। द स्टेप टू इज हैविंग अ पार्टीशन, सो पार्टीशन क्या है, पी आई है जो भी ऐसा डिफाइन किया, दैट इज स्टैंडर्ड पार्टीशन इसको बोलते हैं मोस्टली हम लोग। द नेक्स्ट थिंग इज स्टेप थ्री, दैट इज कंसिडरेशन। ओके, व्हाट इज स्टेप थ्री? कंसिडर यूपीएफ माइनस एलपीएफ, देन समेशन, पहले तो लिखा यूपीएफ एंड एलपीएफ, फिर वी नो दैट एक्स आई प्लस वन माइनस एक्स आई इज वॉट, बी माइनस ए अपॉन एन, एंड वो समेशन को उसमें ब्रेक किया, सो दैट इज गिविंग मी फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म, दैट इज अगेन बी माइनस ए, so this is b minus a the whole square upon n. By step 1 we know that this term is less than epsilon, so implies that f is integrable. Is it clear everyone? सिंपल है प्रूफ, कोई डिफिकल्टी? कोई डिफिकल्टी इसमें? नाउ इफ आई आस्क यू f of x equal to x cube, can you do the same thing like this only? आर्किमिडियन प्रॉपर्टी के लिए क्या लेना पड़ेगा अपने ये केस में? इट विल बी समथिंग आई थिंक b माइनस ए इंटू बी क्यूब माइनस ए क्यूब, ऐसा कुछ तो आएगा शायद, अपॉन एप्सिलॉन दैट इज, समझा? समझ रहे हैं मैंने कैसे देखा ये? एक तो हो गया b माइनस ए अपॉन एन, दैट विल बी माई लेंथ, एंड दिस विल बी माई एम आई माइनस स्मॉल एम आई, कैपिटल एम आई माइनस स्मॉल एम आई, सो कैपिटल एम आई इज बी क्यूब, स्मॉल एम आई इज ए क्यूब, करेक्ट? सो नाउ लेट अस गो इन जनरल, जस्ट ये सब पढ़ने का मतलब क्या हुआ अगर इन जनरल कुछ प्रूफ नहीं किया, थेरम। सो दिस इज द थिंग जो मैं चाह रहा था कि तुम लोग प्रॉब्लम्स ही बोलो, सो दैट अभी देखो थ्योरम तुम लोग को डायरेक्ट दिखेगा, थ्योरम का प्रूफ। नाउ द थ्योरम इज दैट लेट f from closed interval a to b to r be bounded and monotonic, then f is integrable, करेक्ट? मोनोटोनिक में किसी एक के लिए क्या दूसरा डायरेक्ट फॉलो होता है,
सो आइदर इंक्रीजिंग के लिए प्रूफ करो directly, you can say similarly we can do the decreasing part, or you can do the decreasing part and say like that. Is it okay? अभी तुम लोग को टेक्निक शायद पता होगी, और अगर नहीं भी पता है तो लेट मी डू द पहले रफ पार्ट करते हैं, बाद में हम लोग टेक्स्ट बुक प्रूफ देखेंगे, समझ रहे हैं? सपोज मैंने इंक्रीजिंग फंक्शन बोला, इंक्रीजिंग बोला, ठीक है? सो कैन यू टेल मी, सेम ऐसे ही पार्टीशन लिया तो यू पी एफ माइनस एल पी एफ क्या आएगा? दैट विल बी समेशन कैपिटल एम आई माइनस स्मॉल एम आई, and here it will be b minus a upon n. Do you see that? इतना तो आएगा. And what will be my capital Mi? नहीं, f of x है प्लस वन ना, समझ रहे हैं? And this will be f of x है. In this case, here we are talking about in general function. अपने केस में उधर क्या था, ये फंक्शन कांस्टेंट था, तो इसकी जगह पे मैं जस्ट एक्स आई प्लस वन लिखा था, सॉरी दैट वाज आइडेंटिटी फंक्शन, एंड हियर ऑल्सो ये एक्स आई था. नेक्स्ट केस में ये स्क्वायर था, तो यहाँ पे मैं एक्स आई प्लस वन, अभी बस ये है ख़त्म. डू यू सी कुछ भी चेंजेस दिखेगा इसमें? फटाक से आएगा अभी. अभी समेशन ब्रेक किया तो क्या आएगा? समेशन ब्रेक किया तो फाइनल क्या आएगा, कोई बताएगा मुझे यहाँ पे? बी माइनस ए, तो वेरी गुड, वेरी नाइस. एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ में एफ ऑफ, डू यू सी? यही अगर डिक्रीजिंग फंक्शन होता तो ये क्या था, एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी, बाकी कुछ नहीं. नाउ अपने को करना क्या है, ये टर्म क्या होना चाहिए, लेस देन एप्सिलॉन. सो अभी दिख रहा है आर्किमिडियन प्रॉपर्टी में क्या चूज करना है तुमको, वन अपॉन एन टर्म ये रखो, बाकी सबको उधर भेज दो, खत्म. और इसको उधर, और ये उधर, वन अपॉन एन ऐसा. हेलो, डू यू सी एवरीवन? नाउ ये मेरा इन जनरल हो गया. अगर मेरा यही फंक्शन में एक्स लेता तो यहाँ पे क्या आता, बी आता, ए आता. दैट इज़ वॉट आई डिड हियर. डू यू सी, ये मैंने जो डायरेक्टली बोला इसका मतलब यही था, बी माइनस ए इंटू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए. वॉट इज़ एफ ऑफ बी? दैट इज़ बी क्यूब माइनस एफ ऑफ ए क्यूब. डू यू सी? नाउ कैन वी गो टू द प्रूफ नाउ? Yes everyone. Okay, let us start the proof. तुम लोग ही बोलो मुझे. Let me change the color. बहुत है अपने पास, समझा लो. ओके, स्टेप वन क्या है बोलो. स्टेप तुम लोग को लिखना नहीं है, ये जस्ट मैं बता रहा हूँ ऐसा. बिफोर दैट मेरे को चूज़ करना पड़ेगा कि किसके लिए कर रहा हूँ, ठीक है? तो मेरे को बताना पड़ेगा, लेट अस प्रूव द रिजल्ट फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन. फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन. नाउ व्हाट? स्टेप वन अभी लिखता नहीं हूँ, मैं डायरेक्ट लिखूँगा, ठीक है? फॉर गिवन एप्सिलॉन पॉजिटिव, क्या चाहिए बोलो? बाय, फॉर गिवन एप्सिलॉन पॉजिटिव, और क्या चाहिए? सी, जो चाहिए मैं उधर इधर लिख लेता हूँ. क्या चाहिए मेरे को? समथिंग लेस देन एप्सिलॉन. व्हाट इज दैट समथिंग? बी माइनस ए इंटू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एन. डू यू सी दैट? करेक्ट है. अभी आर्किमिडियन क्या बोलती है? वन अपॉन ए, आर्किमिडियन प्रॉपर्टी, वन अपॉन एन इज लेस देन क्या आएगा ये, एप्सिलॉन अपॉन बी माइनस ए इंटू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए. डू यू सी दैट? मतलब ऊपर क्या लिखूंगा मैं, फॉर गिवन एप्सिलॉन पॉजिटिव, दैट मीन्स एप्सिलॉन अपॉन बी माइनस ए इंटू एफ ऑफ बी minus f of a, that is also positive. Now I am going to apply Archimedes property on this term by
Archimedean property. Do you see, everyone? By Archimedean property, what does it say? There exists n belong to natural number such that this is what I am having. Next term वो. Is it okay? Is it clear, everyone? Okay, what next? अभी n मिल गया मेरे को. अभी क्या करूँ? Can I have a partition? Correct? Let us divide इंटरवल ए बी इंटू एन पार्ट. जो भी ये एन ऊपर यूज किया है वही पार्ट. हाँ, करेक्ट. क्या आएगा? एन इक्वल पार्ट्स बोला. सो हम लोग पार्टीशन कैसे डिफाइन करते हैं? लिख लो. पी इक्वल टू सेम, ये पार्ट मैं फिक्स ही रखता हूँ. एक्स नॉट, एक्स वन, एक्स टू, अप टू एक्स एन. वॉट इज एक्स आई? इट इज ए प्लस आई इंटू बी माइनस ए अपॉन एन. इज इट ओके? ये तुम्हारा स्टेप 2 हो गया. नाउ व्हाट? Shall we start the final step? One more thing, साइड में लिख सकते हो नोट. सिंस फंक्शन इज इंक्रीजिंग, देन व्हाट? स्मॉल एम आई और कैपिटल एम आई क्या आएगा? स्मॉल एम आई विल बी एफ ऑफ एक्स आई एंड कैपिटल एम आई विल बी एफ ऑफ एक्स आई प्लस वन. समझा ये? Okay, now let us start. Consider UPF minus LPF. बोलो क्या आएगा? This is summation I equal to 0 to n minus 1. That is what? Capital Mi minus small mi, and that is xi plus 1 minus xi. We already know what is that. This is summation I equal to 0 to n minus 1. What is that? Keep it as it is, mi minus small mi, and it is that b minus a upon n. Or you can also write at the place of mi and small mi, you can write here. You see that? So let me do it in the next step. 0 to n minus 1, that is f of xi plus 1 minus xi. See, डिक्रीजिंग लिया होता तो बस थोड़ा सा ही चेंज होता. दिख रहा है बस यहीं पे, बाकी कुछ नहीं. क्योंकि वो केस में xi मेरा बड़ा होता है एंड xi प्लस 1, एफ ऑफ xi बड़ा होता है एंड एफ ऑफ xi प्लस 1 छोटा. इंटू बी माइनस ए अपॉन एन. ना अगर समेशन डालो तो फाइनल क्या आएगा? एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एन. एन ये इसका एन है. बी माइनस ए. डू यू सी? इतना क्लियर है सबको? नाउ बाय यूजिंग और स्टेप 1, डू यू सी? हम लोगों ने पहले ही बोला है ये टर्म क्या है? दैट इज लेस देन एप्सिलॉन. So can I see that this term is less than epsilon? Okay, hence we will say f is integrable. What was my function? Monotonic function, hence we will say it is integrable. Is the proof okay? Is the proof clear, everyone? Hello, is the proof clear to you? This was our first proof. So now if I am given any function, correct, we just need to check whether that function is increasing or decreasing. If that function is in